Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो and I would like to read from the word of God from Psalms chapter 100 verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with the joyful songs. Know that the Lord is good. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah! वो खुदा भला है और उसकी करुणा सदा की है, तो आइए हम उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं एक खूबसूरत गीत के साथ. Let us exalt his wonderful name on high with a beautiful song, and then we will be blessed by the word by my mother, Miss Ekta Lal. May the Lord bless you. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't
Many years pass. Jacob is dead. The Israelites that came through his family, they're enslaved in Egypt, and God appears to a man named Moses. Exodus chapter 3 at the burning bush. And Moses asks God the same thing Jacob asked God. He said, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you were to say to the Israelites. I am has sent me to you. Now, I preached that verse a lot, but I never preached the next one. And I'm gonna leave you with it. Because the next thing God said to Moses is, say to the Israelites, when they want to know who I am and what kind of God I am, tell them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and I'm thinking he's going to say the God of Israel, because that's Jacob's good side. That's the new Jacob. If you're God and you want to make yourself known, wouldn't you call yourself the God of Israel? Wouldn't you want to be the God of their good side? Wouldn't you want to be the God of the guy who was changed in the wrestling match? But yet he says to Moses, and he says to you today, if you want to know who I am, you need to understand, I'm the God of Jacob too. I'm the God of Jacob. I'm the God of that part of you that you don't want anybody to see. I'm not just the God of your success. I'm the God of your struggle. I'm the God of Jacob too. I'm not just the God of your victories. I'm the God of your defeats. I'm the God of Jacob. The God of Jacob is in this place. His name is Jesus. He's full of mercy, full of grace, full of truth. Oh God of Jacob. Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए एक बार फिर से वेलकम टू महानेम टीवी। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज के इस नायाब खूबसूरत मौके के लिए मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत दिनों के बाद आज परमेश्वर के वचन को लेके आपके बीच में आई हूँ। आज के दिन के लिए इतनी मैं एक्साइटेड थी दैट आई एम गोइंग टू कम मीट हिज पीपल, आई एम गोइंग टू कम प्रीच हिज वर्ड, दैट आई विल बी एबल टू मिनिस्टर अनटू हिज पीपल। और आज के अच्छे समय के लिए आई एम सो हैप्पी टू बी अगेन टॉकिंग to you people of God. I'm so excited to be able to come and meet you. आपसे मुलाकात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। मालूम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम परमेश्वर से एक साथ मिलकर उसके वचन से बात करते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं और उसके वचन से कुछ एक साथ में मिलकर सीखते हैं ना, तो हम सबकी उन्नति होती है। We all grow together, we all learn together and I'm so thankful to God for this opportunity कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं उसके वचन को लेकर आज के दिन में आपके बीच में आने पाई हूँ। मेरी यही प्रार्थना है मेरे अजीजों, माय बिलवड पीपल ऑफ गॉड, दिस इज माय प्रेयर एज यू लिसन टू दिस वर्ड, एज यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच गॉड हैज पुट इन माय हार्ट एंड व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू। जो परमेश्वर ने कलाम, जो वचन उसने अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा मेरे हृदय में रखा है और जो मैं आपसे बांटने पर हूँ, मेरी प्रार्थना मेरे अजीजों ये है कि इससे आपको बरकत मिले, इससे आपको बरकत मिले। मे द वर्ड ब्लेस यू। इससे इस वचन को सुनकर आप अपने सवालों के जवाबों को आज के दिन में पा जाएं। इस वचन को सुनकर आपके दिल में अगर कुछ सवाल उठते हैं, कुछ बातें उठती हैं जिनका शायद आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो जवाब आपको मिलने पाए। दिस इज माय प्रेयर पीपल ऑफ गॉड एंड एज आई प्रीच बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। आज इस वचन को खाने के लिए, इस वचन को पाने के लिए, इस वचन को पचाने के लिए तैयार रहिएगा परमेश्वर के लोगों, ताकि ये कलाम आपको बरकत दे, ताकि ये कलाम मुझे बरकत दे। एंड एज आई
प्रीच, मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आप मेरी आवाज़ को जहाँ जहाँ भी बैठकर सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर आए और आपके ऊपर कब्जा करे, और ये वचन जो परमेश्वर आपसे, आपके लिए बात करना चाहता है पर्सनल लेवल पे, उसको आपसे वो करने पाए। May the Holy Spirit come and touch you as I preach, people of God, wherever you are listening to my voice. May the Spirit of God touch you, bless you and use you mightily. परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। Let's quickly turn to our Bibles. परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं विश्वास रखती हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास में है, आप परमेश्वर का वचन आपके पास में है, और जल्दी से मेरे साथ में निकालें। इससे पहले कि वचन आपसे खुलवाऊं, कुछ एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मैं उस समय की बात है जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के घर से बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा कि अपने बाप के घर को छोड़ दे और मेरे जहां मैं तुझे ले जाने पर हूं वहां पर चलना शुरू कर। God called Abraham out of his father's house and said, follow me. जहां मैं तुझे ले जाता हूं, I am taking you to a certain place, just come and follow me. जैसा तू है, तू अपने बाप के घर को छोड़ और मेरे पीछे आ। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को माना, उसकी बात को सुना और उसके पीछे पीछे चलने लगा। बहुत साल बीतते गए, अब्राहम का बेटा हुआ। दिस इज नॉट माई वर्ड, ये मेरा कलाम नहीं है। अब्राहम का बेटा हुआ इसहाक के बच्चे हुए, बहुत से बातें हुई। अब्राहम भी मर गया, इसहाक भी मर गया, उसके बच्चे भी हो गए, याकूब हो गया, ईसाऊ हो गया, वो भी रहलत फरमा गए। और बहुत सालों के बाद जो इजराइलिट्स थे, इजरायली लोग थे, मिस्रियों की बंधुआई में चले गए। द इजराइलिट्स वेंट इनटू बॉन्डेज ऑफ इजिप्शियंस। वो परमेश्वर के लोग जिन्हें उसने बुलाया था, वो बंधुआई में चले गए। Today I'm not going to talk about that. मैं आपसे बॉन्डेज की बात नहीं करूंगी। परमेश्वर ने एक शख्स को बुलाया। जब उसके लोगों को उसने देखा कि वो बंधुआई में है, तब उसने इस शख्स को बुलाया। Yes, I'm talking to you about Moses. मूसा को उसने बुलाया, लेकिन मूसा भी मेरे प्रचार का विषय नहीं है। Moses is not the topic of my sermon today. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से उसने एक बात कही। अगर आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत, बल्कि 13वीं आयत से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 13th आयत से 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे 13, 14 और 15वीं आयत। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे। जल्दी से अपने वचन में निकाल लें। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 13, 14 एंड 15। मूसा परमेश्वर से बातचीत कराई। ये वो जलती हुई झाड़ी का दृश्य है। इट्स द प्लेस वेयर द बुश वाज बर्निंग। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि तू जा, इजराइलियों के पास जा और उन्हें वहां से लेकर आ। और मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है। मूसा ने परमेश्वर से एक सवाल किया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। मूसा का सवाल बहुत जायज था। मूसा इजराइलियों के पास जा रहा था और उनसे वो कहने को परमेश्वर ने कहा था कि उनको कहे कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊं। तो मूसा का सवाल बहुत जायज था कि मैं इजराइलियों के पास अगर जाता हूं तो उनसे कहूं और वो मुझसे पूछते हैं कि तुझे किसने भेजा, तो मैं तेरा क्या नाम बताऊं। परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। इन इंग्लिश इट सेज आई एम हु आई एम। मैं जो हूं सो हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। He who is I am has sent to you. और उसके बाद, दिस इज नॉट माई sermon, कम टू द 15th वर्स। 15वीं आयत में मूसा से परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, इजराइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और आगे क्या लिखा है, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इंग्लिश में it says beautifully, in English it says beautifully, it says in verse 15,
यहाँ पे लिखा है, God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob has sent me to you. आप बोलेंगे ये तो हमने बहुत बार सुना है, ये तो हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं, हमने कितने पास्टर्स को सुना है, हमने कितने बिशप्स को सुना, हमने कितने लोगों को खड़े होकर प्रार्थना करते हुए सुना है, और वो इस बात को कहते हैं, दे इन्वोक गॉड लाइक दिस, वो इस तरीके से परमेश्वर को बुलाते हैं, उसका नाम लेके, अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। इसमें नई बात क्या है मालूम? इसमें बात नहीं है, इसमें सवाल है जो मैं आपसे आज के इस दिन में करने आई हूं। आई हैव अ क्वेश्चन। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो एक सवाल मेरे मन में उठा, और वो सवाल ये था, परमेश्वर, मैं तो प्रॉबेबली ये एक्सपेक्ट करती कि वो कहता, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर और इजराइल का परमेश्वर हूं, लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया? I am the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. मैंने परमेश्वर से, जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे दिल में सवाल आया, God, why would you not say that you are the God of Israel? तूने ये क्यों नहीं कहा परमेश्वर कि तू इजराइल का परमेश्वर है? अगर हम थोड़ा सा रिविजन करें, इस बात को याद करें, तो आपको ये बात याद आएगी कि ये तो निर्गमन की बात हो रही है, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। निर्गमन 3 अध्याय की ये बात हो रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आपको याद आएगा कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने याकूब का नाम, जब वो कहता है याकूब का परमेश्वर, तब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में कुछ किया था। जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 एंड वर्स 28, वहां पे कुछ हुआ था। परमेश्वर ने इस तरीके से याकूब से कहा था, योर नेम विल नो लॉन्गर बी जेकब बट इजराइल। परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम अब इजराइल होगा। परमेश्वर ने उसका नाम वहां पर बदल दिया था। 32वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर ने और वही ये काम वहां पर किया, याकूब का नाम इजराइल कर दिया। और निर्गमन में आते आते जब उसका नाम ऑलरेडी याकूब का नाम इजराइल हो चुका है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मैं सोचने लगी, खुदा बाप तूने ये क्यों बोला कि तू याकूब का परमेश्वर है? उसका नाम तो तूने बदल दिया था, इजराइल कर दिया, क्योंकि तूने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। तूने ये नहीं बोला अब्राम, अब्राम का नाम तूने बदल कर अब्राहम कर दिया था। और क्योंकि तूने यू हैड चेंज्ड अब्राहम्स नेम टू अब्राहम, यू सेड आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, देन why did you not, God, why did you not say I am the God of Israel? परमेश्वर ने कहा मैं याकूब का परमेश्वर हूं। उसने इजराइल क्यों नहीं बोला? उसने ये क्यों नहीं बोला? आज भी जब हम बोलते हैं तो हम इजराइल का परमेश्वर नहीं बोलते, हम बोलते हैं याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये जब, और इस बात को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया, आई आस्क्ड द होली स्पिरिट टू कम एंड हेल्प मी, एंड यू नो आई अंडरस्टूड समथिंग। मुझे परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में कुछ समझ में आया। मुझे परमेश्वर के बारे में एक और बात समझ में आई जो मैं आज आपसे बांटना चाहती हूँ, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। You know, he says in verse 28, इस बात का एक्सप्लेनेशन कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि वो इजराइल का परमेश्वर है, और ये क्यों कहा कि वो याकूब का परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ये क्यों नहीं बोला कि वो इजराइल का परमेश्वर है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें वचन से ही मिल जाएगी, इसी वचन से मिल जाएगी। लेट्स टर्न बैक टू जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 28। उत्पत्ति की पुस्तक 32वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, योर नेम विल नो लॉन्गर बी जेकब बट इजराइल, बिकॉज you have struggled with God and with men and have overcome। परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है, परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है, और उसने याकूब को कहा कि तेरा नाम अब याकूब ना रहेगा मगर इजराइल हो जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य दोनों से स्ट्रगल किया है, दोनों से जद्दोजहद की है, और जद्दोजहद करने के बाद तू विजयी हुआ है, एंड दैट इज व्हाई योर नेम विल बी इजराइल। हिज नेम वाज चेंज्ड। यू नो, क्विकली आई विल टेल यू, इजराइल या इजराइल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उस नाम का अर्थ होता है ट्रायम्फेंट या विजयी। Israel means triumphant। इजराइल का अर्थ होता है विजयी।
जिसने विजय पाई है, जो विजयी है, जो सक्सेसफुल है, जिसको सब कुछ मिल चुका है, जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छी बात को देख लिया है, जिसके लिए सब कुछ अच्छा है, that person, that is his people, they are triumphant people and they are called Israel. तब और याकूब का मतलब होता है, जब याकूब और ईसौ पैदा हुए थे तब याकूब का अर्थ भी बाइबल में लिखा है। मालूम क्या लिखा था याकूब के लिए? याकूब के लिए कहा गया था वो अड़ंगा देने वाला है। ही इज अ सप्लांटर। सप्लांटर का मतलब होता है वो हड़पेगा, वो अपने भाई के हक को हड़प लेगा। भाई की एड़ी को पकड़कर बाहर निकला था और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नाम अड़ंगा देने वाला रखा गया था, याकूब रखा गया था, कि वो हड़पने वाला होगा, वो डिसीवर होगा, वो धोखा देने वाला होगा। उसने अपने फादर को डिसीव किया था, उसने अपने फादर के साथ उनको चीट किया था, उन्हें धोखा दिया था। यू नो, इज़राइल इज सच अ पॉजिटिव वर्ड, इज़राइल इज सच अ पॉजिटिव नेम एंड जेकब हैज सच नेगेटिव मीनिंग। इतना नेगेटिव मीनिंग है जेकब का, बट स्टिल गॉड डिसाइड्स टू बी कॉल्ड द गॉड ऑफ जेकब। यू नो व्हाई? क्योंकि 28वीं आयत में जैसा मैंने पढ़ा वहां पर लिखा है, अगर मैं इसको हिंदी में आपके लिए पढ़ूं तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है यहाँ पे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा याकूब से, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यू नो, जेकब्स लाइफ, अगर मैं और आप थोड़ी देर के लिए जेकब की लाइफ पे कंसंट्रेट करें ना, अगर याकूब की लाइफ को हम समझें, जेकब्स लाइफ वाज अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल। याकूब की जिंदगी एक स्ट्रगल की जिंदगी थी, एक कांस्टेंट जद्दोजहद की जिंदगी थी। जब से वो पैदा हुआ था वो एक जद्दोजहद में लगा था, एक स्ट्रगल में रहता था। पहले उसका स्ट्रगल ये था कि मैं अपने भाई से उसके पहलौटे होने का हक छीन लूं। फिर उसका स्ट्रगल ये था कि जब मैं अपने बाप के घर से भाग गया हूं तो जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं मैं उसके फादर से उसको किस तरीके से छीन लूं। उसने स्ट्रगल किया, 7 साल मेहनत करी, 7 साल अपने मामू की उसने सेवा करी कि ये लड़की मुझे मिल जाए, ये लड़की मुझे मिल जाए, ये रेचल मुझे मिल जाए ताकि मैं इससे शादी कर सकूं, लेकिन फिर भी नहीं मिली। उसने 7 साल और जद्दोजहद करी। जेकब हैज बीन स्ट्रगलिंग टू गेट एवरीथिंग जो उसकी लाइफ में उसको चाहिए था। मालूम, बिना स्ट्रगल के उसको नहीं मिला। उसने जद्दोजहद करी, उसने बातों को फिट किया, ऐसे नहीं ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं ऐसे मिल जाए। जेकब्स लाइफ हैज बीन अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल। बहुत जद्दोजहद के बात करने के बाद उसको वो बातें उसके साथ हुई जो उसको चाहिए थी। He spent his life in struggle. His life has been so hard on him. उसने ये सब स्ट्रगल करते इतने साल बिता दिए। But you know something beautiful about Jacob? आप कहेंगे what is beautiful in it? Jacob's life has nothing beautiful in it. उसने अपने भाई का सगा नहीं हुआ, वो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो अपने मामू के घर से भी भाग आया, उसने किसी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। What is good about Jacob's life? You know what is good about Jacob's life? Something is so beautiful about Jacob's life that the word tells me he's been a struggler. उसने स्ट्रगल किया। उसको जैसे अब्राहम को एक क्लियर कट डायरेक्शन परमेश्वर से मिला था, सब बातें उसके लिए हुई थी। याकूब को भी परमेश्वर ने बता तो दिया था कि तेरा दूसरा बच्चा पहले पर प्रबल हो जाएगा, लेकिन याकूब को सब कुछ जल्दोजहद करके पाना था। बट मालूम उसने क्या किया? He kept persevering. वो persevere करता रहा, वो struggle करता रहा। He kept on going. उसने सब बातें अपने stride में ली and finally he realized God is with him. उसने इस बात को समझा कि हाँ, परमेश्वर उसका परमेश्वर है, जो उसके पितरों का परमेश्वर है वो ही उसका परमेश्वर है। और मालूम एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात आपको मैं बताऊं, याकूब से ही तो इज़राइल निकलता है। From Jacob comes out Israel. Israel वैक्यूम में नहीं होता। आपको लगा, अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के नाम को मानने वाले हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, वो वैक्यूम में क्रिएट हो जाएंगे। वो ट्रायम्फेंट, वो विजयी लोग एक वैक्यूम में बन जाएंगे। आप से आप बन जाएंगे, खुद ब खुद बनकर सामने आ जाएंगे कि देखो ये विजयी वो लोग हैं जिन्होंने सब बातों पर विजय पाई है। ये इज़राइल की कौम है जिन्हें परमेश्वर
उन्होंने छुड़ाया है, जो सब बातों पर विजयी हुए हैं, हाँ हुए हैं। बट यू नो व्हाट, द सीक्रेट हियर इज आउट ऑफ जेकब कम्स इजराइल। याकूब से इजराइल निकलता है। अगर आपको विजय चाहिए अपनी जिंदगी में, इफ यू वांट टू बी ट्रायम्फेंट, यू विल हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल्स, यू विल हैव टू गो थ्रू डिफीट ऑल्सो। याकूब की जिंदगी में डिफीट थी, याकूब की जिंदगी में स्ट्रगल था, याकूब की जिंदगी में दुख था, याकूब की जिंदगी में सब कुछ ऐसा था जो शायद नेगेटिव था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। पर मालूम, इसी में से तो ही इजराइल निकल के आया। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में लड़ना नहीं सीखेंगे, स्ट्रगल करना नहीं सीखेंगे, कभी कभी हमें लगता है खुदा बाप तूने हमारी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स ही रखे हैं, इस स्ट्रगल इज all that is kept for me. I have been struggling, Lord. I have been struggling in this area of my life. I have been struggling in that area of my life. When we go out and meet people, हमारा persona बहुत अच्छा होता है। मालूम, इस बात को सोचिएगा, जब हम लोगों से मिलते हैं, we look so happy, we look victorious, हमें लगता है everything is good, लोगों को लगता है सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा है। But you know, there is a part in our life, कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है हमारी जिंदगी में जो हम किसी से बांटना नहीं चाहते, जो हम किसी को बताना नहीं चाहते। But that part, that space in our life tells us that you are defeated, that you are defeated. तुमने स्ट्रगल किया है, लेकिन तुम पा नहीं पा रहे हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा है। You want to be blessed amazingly, but that blessing is not coming to you. You know what happens? You have to keep struggling. You have to keep struggling. That is the beauty of Jacob's life. याकूब की जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ही यही थी कि वो स्ट्रगल करता रहा। अपने मामू के घर से जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने लोगों के बीच में वापस जा, इफ यू स्टार्ट रीडिंग चैप्टर 32, अगर आप 32वें अध्याय को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे पहली आयत से, तो वहां पर याकूब को परमेश्वर ने बोला कि वापस अपने भाई के घर जा, अपने बाप के घर जा। और याकूब वापस लौट रहा है और वो डर रहा है। 7वीं आयत में पढ़िएगा, ही इज अफ्रेड, जेकब इज अफ्रेड एंड इन ग्रेट डिस्ट्रेस। 7वीं आयत में इस तरीके से लिखा है कि वो डरता डरता वापस जा रहा था। जब उसको मालूम हुआ कि ईसाऊ उससे मिलने को आ रहा है तो वो डर गया। मालूम क्यों डर गया? इसलिए डर गया कि उसको लगा याकूब उसे मार देगा। His situation is still negative. आपकी सिचुएशन नेगेटिव ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रही आपकी सिचुएशन मैजिकली बदल जाएगी, मैं ये नहीं कह रही आपके स्ट्रगल्स अचानक से आपके एकदम आपकी विक्ट्री में बदल जाएंगे। What I am trying to tell you today, people of God, is this: He is God of Jacob. He is God of Jacob. He is not just the God of your success. He is the God of your struggles. आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इस बात को बोलिएगा, He is not just the God of my success. He is the God of my struggles. He is not just the God of your victory. He is the God of your defeat. He is not just the God of good in your life, but He is also the God of bad going in your life. वो सिर्फ अच्छाई का परमेश्वर नहीं है, वो अगर आपके हिस्से में, आपकी जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा है, उसका भी परमेश्वर है। वो सिर्फ सफलता का परमेश्वर नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कहीं हार आई है, आपको लगता है आप हारे हुए हैं, वो उसका भी परमेश्वर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पीछे छूट चुके हैं, आप सफलता को नहीं पा रहे हैं, तो वो वहां का भी परमेश्वर है। He is not just the God of struggles. He is the God of success as well as struggles. He is the God of Jacob. He is the God of Jacob. और मालूम सबसे खूबसूरत बात याकूब की जिंदगी में क्या हुई थी? याकूब की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बात तो इस 32वें अध्याय के 33वें आयत से 22वीं आयत से शुरू करिएगा पढ़ना। याकूब ने एक काम किया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 22वें आयत से अगर आप पढ़े, मालूम जब वो वहां पर डरते डरते उस रात को वहां ठहर गया कि याकूब या ईसाऊ आएगा, मेरा बड़ा भाई आएगा, मैं उसको धोखा देकर भागा था। उसकी सिचुएशन बहुत नेगेटिव थी, उसको लगा मेरे सारे परिवार को मार देगा, मुझे मार देगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड यू नो, इन द नाइट व्हाट हैपेंड, ही ऑल्सो फॉट गॉड। परमेश्वर उसके पास आया और उसको आप पढ़ लीजिएगा 22वीं आयत से आगे। याकूब ने परमेश्वर के साथ भी स्ट्रगल किया, पूरी रात उसने स्ट्रगल किया। और मालूम स्ट्रगल किस बात के लिए किया? द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट जेकब सेड, उसने सारी रात स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इस तरीके से लिखा है कि याकूब ने परमेश्वर को कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देगा। Jacob knew that he will not let God go till he is blessed.
एंड यू नो गॉड सेड, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, You will be blessed, तुझे मैं आशीष दूंगा, and you will no longer be called Jacob, but you will be called Israel. My dear people of God, this is all that I am. I have come to tell you, He is God of Jacob. He is the God of your struggles. अगर आज अपनी लाइफ में आप किसी बात में स्ट्रगल कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि मेरी आशीष को ये रोक रही है, मैं कब तक स्ट्रगल करता रहूं, मैं कब तक मैं इस आशीष के लिए रुका रहूं, wait, hold on. If you think, you know, your situations, आपकी परिस्थितियां, मेरी परिस्थितियां हमेशा हमें ये बताएंगी कि हम हारे हुए हैं. I am still not saying your situations will magically change. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी परिस्थिति रात में ही बदल जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपकी परिस्थिति हमेशा हो सकता है ऐसी रहे जो आपको लगे कि मैं हारा हुआ हूँ, कि आपकी सिचुएशन हमेशा ऐसी हो सकती है कि आपको लगे that I am defeated, I am struggling. But I want to tell you, He is the God of Jacob. Even in that struggle, He is with you. He is with you. अगर वो आपकी जीत में आपके साथ है, अगर वो इज़राइल का परमेश्वर है, तो उससे पहले याकूब का परमेश्वर है. He is with you in your struggles. He is with you in your defeats. He is with you. जब आप अपने ends को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब अपने बच्चों को देखते हैं, जब अपने घर को देखते हैं, आपको लगता है कैसे होगा, कहां से होगा, मेरे हाथ खाली हैं, मेरा अकाउंट खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेली इस लड़ाई को लड़ रही हूं, मैं अकेला इस घर को चला रहा हूं, मैं कैसे करूंगा. God is with you. He is the God of Jacob and He is waiting for you, people of God. वो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब इस याकूब में से इज़राइल निकल के आएगा, कब इस याकूब में से इज़राइल निकल के आएगा. मालूम कब निकल के आएगा? जब आप परसिवियर करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे. एंड वन डे इफ यू आर स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, लड़ते रहिए इस लड़ाई को. अगर ये आपकी लड़ाई है तो लड़ते रहिए इस लड़ाई को, क्योंकि एक दिन आएगा when God is going to come and bless you, when God is going to come and bless you, वो आपके पास आएगा और आपको बरकत देगा और कहेगा you are blessed indeed. You are blessed indeed. You have struggled with God and with men, and you have overcome, and I am here to bless you. The Lord will come and bless you. The Lord will bless your family. Trust the word of God. He is the God of Jacob. Keep struggling until God comes and blesses you. प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए, उसके विश्वास में बने रहिए, अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए. खुदा बाप आएगा और आपको वो बरकत देगा जो उसने आपके लिए रखी है. He is the God of Jacob. He is the God of Abraham. अगर वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो ऑलरेडी जीते हुए का परमेश्वर है, वो अच्छी बात का परमेश्वर है, तो वो याकूब का परमेश्वर भी है. जो शायद इतना अच्छा नहीं है, जो शायद इतना खूबसूरत नहीं है, वो उसका भी परमेश्वर है. He is your God. He is the God of Jacob. He watches over you, people of God, and I am here to just bless you with this thing. He watches over you. He watches over you. जब आप रोने की तराई में से होकर जाते हैं, वो आपको देखता है, उसकी नजरें आप पर होती हैं. He is the God of Jacob. He watches over you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make His face shine upon you. खुदा बाप आपको बरकत दे. इस वचन से अगर बरकत मिली है तो और लोगों के साथ भी बांटिएगा. अगले हफ्ते फिर हमसे मुलाकात करिएगा. We will bless you with, we will together get blessed with the word of God. परमेश्वर आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, हम सबको अपने विश्वास में बनाकर रखे और हम उसमें बढ़ते चले जाएं. ये मेरी दुआ है. May the Lord bless you. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने वचन से आपको बरकत दी है. गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ हिज वर्ड. और ये बात सत्य है, ये बात सच है, हर प्रकार से मानने योग्य है कि परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता. ही नेवर लीव्स अस ऑर्फन. वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं. और ये वचन यकीनन आपके और मेरे दिल में नक्श कर दिया जाए, ये आपके और मेरे दिल में अब से आइंदा हमेशा पाया जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं. और जब मैं उसका बेटा हूं और उसकी बेटी हूं तो मैं किसी भी रूप में अकेला नहीं पाया जा सकता. परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर पाया जाता है और मैं अकेला नहीं हूं. बाइबल की एक बात है, आपको वो कहानी अच्छे से याद होगी, जब यीशु मसीह ने
5,000 की भीड़ को खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली के साथ में, और 12 टोकरे बचे रहे। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है, उत्साहित करने वाली बात है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। इसके बाद में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इससे ऊपर की आयतों में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया है, और ये आयत कहती है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा ना कर दे। और उसने लोगों को विदा करा, उस 5,000 की भीड़ को यीशु मसीह ने विदा करा। अपने चेलों से कहा कि तुम झील के उसके पार चले जाओ। और उसके बाद में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए। और आप जानते हैं, आगे पढ़ते चले जाइएगा, बहुत तूफान उठा, सामने की हवा थी, बहुत तूफान उठा, लहरें ऊंची उठने लग गई, ऐसा लग रहा था चेले डूब के मर जाएंगे। और उस समय में यीशु मसीह उस झील के ऊपर चलता हुआ, उस पानी के ऊपर चलता हुआ अपने चेलों के पास में पहुंचा। ये एक मौजज़ा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने करा था जब 5,000 की भीड़ को खिलाया और जब चेलों को विवश किया जाने के लिए। तो अगर मैं और आप उस नाव के अंदर होते तो मैं और आप ये कहते, देखा हमें अकेला छोड़ दिया, मरने के लिए हमें यहाँ पे छोड़ के चला गया। ये देखो कितनी ज्यादा तूफान आ रहा है, नाव कितनी गोते खा रही है, हम यकीनन मर जाएंगे। कहां है यीशु मसीह इस समय? हमारे साथ में नाव में होना चाहिए था। अगर हम मर रहे हैं तो उसको भी हमारे साथ में मरना चाहिए था। लेकिन आपको एक बात बताना मांगता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। अच्छे समय में अगर वो हमारे साथ में होता है तो हमारे बुरे समय में वो हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे बुरे समय की उन लहरों के ऊपर चलता हुआ हमारे पास में आ जाता है और हमें बचा लेता है। और जब यीशु मसीह पास में आ गए और उसने सब कुछ शांत कर दिया, सारी झील का पानी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कभी तूफान उठा ही नहीं था। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, तो विश्वास करिएगा, तूफान अगर उठेगा, लहरें अगर उठेंगी, तो उनको बैठाना, उनको शांत करना मेरे परमेश्वर को और आपके परमेश्वर को आता है। वो मेरे और आपके साथ में मौजूद है। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का यह वचन जो आज मेरी वाइफ एकता ने आपके साथ में शेयर करा है, यकीनन उस वचन ने आपको बरकत दी है। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। शुक्रगुजार हैं कि तू हमारे साथ में सदा सर्वदा बना रहता है। हर एक पल में तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारे हर एक पल का खुदा है। और हम तेरे को हाजिर और नाजिर जानकर अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, अपनी समस्याओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, अपनी सिचुएशंस को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है तू हमारे साथ में मौजूद है। तू हमसे पहले हमारी सिचुएशन में हमारे साथ में खड़ा है। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने वचन को हमारे दिल में नक्श कर दे और हमें अपने वचन के ऊपर चलने की तौफीक बख्श। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम एक बार फिर से आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करने के लिए आएंगे और हमें विश्वास है जब तक हम आपसे नहीं मिलेंगे तब तक परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिएगा, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर की ओर से एक बरकत है, एक नियमत है। Every day is a blessing from God above. May the Lord bless you.